ایک طرف مہنگائی کا زور، دوسری طرف مافیا کا گٹھ جوڑ۔ سبزیاں، پھل اور سبز مسالہ جات کی قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول ہو گئیں۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں 16 سبزیوں کے بھاؤ بڑھ گئے ہیں۔ ادرک 1250، لہسن 650، لیمو 170، پیاز 130 اور ٹماٹر 120 روپے کلو میں فروخت ہونے لگے۔ ٹینڈے 200، پھول گوبھی 190، کریلے 160، آلو اور بینگن 110 روپے کلو میں دستیاب ہیں۔ پھلوں میں انار بدانا 900، انگور 500، جبکہ سیب 350 اور ناشپاتی 250 روپے کلو میں فروخت ہو رہے ہیں۔ تفصیلات کے لیے بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر، بتائیے گا۔ بالکل، آج سبز منڈی انتظامیہ کی جانب سے جو سرکاری نفرات جاری کیے گئے اس میں 16 سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے اور سبزی مسالہ جات کی قیمتیں بھی جو مارکیٹ میں شہریوں سے وصول کی جا رہی ہیں وہ سرکاری نفرات کے برعکس زائد کی جا رہی ہے۔ پیاز 95 روپے میں فروخت کیا گیا لیکن مارکیٹ میں 130 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ ٹماٹر 85 کے برعکس 120، لہسن 480 کے برعکس 650 اور ادرک 1100 کے برعکس 1250 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ جن سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اس میں لیمو 5 روپے مہنگا کر کے 140 روپے میں فروخت کیا گیا لیکن 170 روپے فی کلو تک۔ ٹینڈے بھی 15 روپے اضافے کے بعد 170 روپے میں فروخت کیے گئے لیکن مارکیٹ میں 200 روپے فی کلو تک فروخت کیے جا رہے ہیں۔ آلو 2 روپے اضافے کے بعد 80 روپے میں فروخت کیا گیا۔ مارکیٹ میں آلو کی فروخت 100 سے 110 روپے فی کلو تک کی جا رہی ہے۔ میتھی 20 روپے اضافے کے بعد 240 روپے فروخت کی گئی۔ مارکیٹ میں 350 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ بیگن 11 روپے، بڑھا کر 85 روپے سرکاری ریٹ میں فروخت کیا گیا لیکن مارکیٹ میں بیگن کی فروخت 110 روپے فی کلو تک کی جا رہی ہے۔ کھیرا 21 روپے مہنگا کیا گیا، 76 روپے سرکاری ریٹ میں آج کی قیمت ہے لیکن مارکیٹ میں 100 روپے فی کلو تک کھیرے کی فروخت کی جا رہی ہے۔ کریلے 10 روپے مہنگے کر کے 130 روپے میں فروخت کیے گئے لیکن مارکیٹ میں 160 روپے فی کلو تک فروخت کیے جا رہے ہیں۔ پالک 5 روپے مہنگی کر کے 50 روپے میں فروخت کی گئی لیکن 70 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ بند گوبھی 5 روپے اضافے کے بعد 130 روپے میں فروخت کی گئی ہے، فروخت 160 روپے فی کلو تک کی جا رہی ہے۔ پھول گوبھی 10 روپے مہنگی کر کے 160 روپے میں فروخت کی گئی لیکن مارکیٹ میں پھول گوبھی 190 سے 200 روپے فی کلو تک کی جا رہی ہے۔ شلجم 5 روپے اضافے کے بعد 135 روپے میں فروخت کیا گیا لیکن شلجم کی فروخت 160 روپے فی کلو تک کی جا رہی ہے۔ بھنڈی 10 روپے بڑھا کر 110 روپے میں فروخت کی گئی لیکن مارکیٹ میں 140 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ شملہ مرچ کی قیمت میں بھی 5 روپے کا اضافہ ہوا، 185 روپے آج قیمت ہے لیکن مارکیٹ میں شہریوں سے 220 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ عربی 10 روپے مہنگی کر کے 140 روپے میں فروخت کی گئی ہے۔ اسی طرح مٹر 10 روپے اضافے کے بعد 310 اور گاجر 10 روپے مہنگی کر کے 140 روپے فی کلو تک سرکاری ریٹ میں فروخت کی گئی لیکن مارکیٹ میں تمام سبزیاں جو ہیں وہ سرکاری نشناموں کے برعکس مہنگے داموں فروخت کی جا رہی ہیں۔ اسی طرح پھلوں کی جو سرکاری ریٹ میں بظاہر کسی پھل کی قیمت میں اضافہ نہیں کیا گیا لیکن مارکیٹ میں سرکاری نشانے کے برعکس مہنگے داموں پھلوں کی فروخت معمول بن چکی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عبدالقادر، آپ نے تفصیلاً آگاہ کیا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، بلند ترین سطح تک پہنچ جانے والی مہنگائی کی شرح نے شہریوں سے احتجاج کی سکت بھی چھین لی۔ شہریوں نے حکومتی رویے کے باعث احتجاج کو لا حاصل قرار دے دیا ہے۔ گراں فروشی پر قابو پانا بھی بڑا مسئلہ بن گیا۔ سہیل کیسر کی رپورٹ دیکھیے۔ پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی کی بلند ترین قیمتیں تو اپنی جگہ، لیکن اب تو شہریوں کے لیے سبزیوں، دالوں اور دیگر اشیاء ضروریہ کی خریداری بھی ان کی بساط سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ملک کی مجموعی آبادی کا 24.3% حصہ خط غربت سے نیچے چلا گیا ہے۔ حالات یہ ہو چلے ہیں کہ ضروریات زندگی کی طلب پوری کرتے کرتے اب شہری اپنے اندر احتجاج کی سکت بھی نہیں پاتے۔ جو میں نے کمانا ہے وہی شام کو میں نے کھانا ہے۔ میں اگر احتجاج کے لیے جاتا ہوں تو بچوں کو شام کو کھانا کہاں سے کھلاؤں گا؟ میں نہیں کھلا سکتا۔ ماں جی بچہ روندا تو دودھ دینی ہے نا، اتنے تو روئے جا، انہوں نے کچھ بھی نہیں دینا۔ یہ انہوں نے نہ ٹھڈ بھرنے نے تو نہ سانوں عوام کو کسی نے ملنا۔ آپ اس ملک میں امپلیمنٹیشن لا کر دیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے، انصاف کر دیں سب کے لیے سے، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ادروائز یہ انفلیشن یہ چلتی رہے گی۔ مہنگائی کی کم و بیش 30% تک پہنچ جانے والی شرح کے ساتھ گراں فروشوں کی منمانیاں الگ سے ستم ڈھا رہی ہیں۔ ملک کے دوسرے بڑے شہر لاہور میں اس وقت لگ بھگ 70 کے قریب پرائس کنٹرول میجسٹریٹس کام کر رہے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو اشیاء کی منمانے نرخوں پر فروخت کافی سنگین مسئلہ بن چکی ہے۔ جو نیسیسٹی آئٹمز وغیرہ ہیں، ہمارے دالیں ہیں، چنا اور اس کی جو ساری ورکنگ ہوتی ہے اس کو بھی ہم نے ریویو کر کے ان کو ریشنلائز کیا ہے۔ پرائس ڈفرینشیل وہ بھی بہت میسو ایگزسٹ کر رہا تھا کہ جہاں پہ ریٹس اس طرح سے الائن نہیں تھے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں کہ سپلائی کو مینیج کیا جائے
کہ سپلائی جتنی ڈیمانڈ ہے اس کے ریکوائرڈ آ رہی ہو تاکہ اس کی وجہ سے اس ڈفرینس کی وجہ سے ایٹ لیسٹ انفلیشن نہ ہو۔ اقدامات اپنی جگہ، لیکن یہ بات سمجھنا ہوگی کہ حالات سے نا امیدی بہت سے مصائب کو دعوت دے رہی ہے۔ ستم بالائے ستم تو یہ بھی ہے کہ مہنگائی کی اس ہوش ربا صورتحال کے باوجود حکومتی سطح پر اس صورتحال میں بہتری کے لیے کوئی سنجیدہ کوششیں ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی، بلکہ ایسے خدشات سامنے آ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ کیمرامین بلال علی کے ساتھ سہیل کیسر، لاہور۔ دوسری جانب بیکری مصنوعات کی قیمتوں میں بڑا اضافہ، بڑی ڈبل روٹی کی قیمت میں 20 روپے اضافہ کر کے قیمت 220 روپے مقرر کر دی گئی۔ رس کے پیکٹ کی قیمت 150 سے بڑھا کر 200 روپے کر دی گئی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ انڈے، جیم، مکھن بند اور رس کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ مہنگائی کے وار سے بیکری آئٹمز بھی محفوظ نہ رہ سکیں۔ انڈے، ڈبل روٹی، بن، جیم، مکھن اور بیکری کی دیگر آئٹمز عوام کی پہنچ سے دور ہیں۔ بڑی ڈبل روٹی 200 روپے سے بڑھا کر قیمت 220 روپے مقرر۔ رس کے پیکٹ کی قیمت 150 سے بڑھا کر 200 روپے کر دی گئی۔ جیم 280 روپے سے بڑھ کر 350 روپے، جبکہ مکھن 400 روپے سے بڑھ کر 750 روپے کا ہو گیا۔ بن بھی مہنگا، قیمت 30 روپے سے بڑھا کر 35 روپے کر دی گئی۔ شہری کہتے ہیں جیم، ڈبل روٹی، انڈے اور مکھن سب مہنگا ہے۔ کسی بھی بیکری میں کوئی فکس ریٹ نہیں ہے۔ 1000 روپے بیکری میں لائیں تو پتہ نہیں چلتا کہاں لگ گئے۔ اب تو بیکری میں شاپر کے بھی 10 روپے ہم سے وصول کیے جاتے ہیں۔ بیکری کے لیے سارا سامان بڑھ گیا ہے، ہر چیز بڑھ رہی ہے، جو بھی آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے اپنی من مرضی کر رہا ہے۔ بیکری کی چیزیں بھی پہنچ سے باہر ہو گئی ہیں۔ اب بریڈ پہلے 80 کی تھی، اب 130 کی ہو گئی ہے۔ انڈے ہیں وہ 300 روپے درجن ہو گئے ہیں۔ اب غریب آدمی جائے تو جائے کہاں؟ بریڈ پہلے 190 کی آتی تھی، اب وہ ہو گیا 210 روپے کی۔ اور یہ دیکھیں شاپر بھی گھر سے لے کے آئے، شاپر کے 10 روپے بھی کاٹتے ہیں، اور 1000 روپیہ جو لے کے آتے ہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے بیکری کی آئٹمز کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بیکریوں کی انتظامیہ نہ صرف معیار بہتر کرے بلکہ قیمتیں بھی مناسب کی جائیں۔ ضروری اشیاء کے ساتھ ڈیری مصنوعات بھی مہنگی۔ مارکیٹ میں لوکل دودھ 170 روپے کلو، جبکہ مختلف برانڈز کا دودھ 270 سے 300 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ لوکل دہی 210 روپے کلو، جبکہ مختلف برانڈ کا دہی 350 سے 400 روپے کلو تک ہو گیا۔ شہری کہتے ہیں حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرے تاکہ اشیاء کی قیمتوں میں کمی آ سکے۔ مہنگائی بے لگام، ضروری اشیاء کے بعد ڈیری مصنوعات بھی عوام کی پہنچ سے دور۔ مارکیٹ میں لوکل دودھ 170 روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگا۔ مختلف برانڈز کے دودھ 270 سے 300 روپے فی کلو تک میں فروخت ہو رہے ہیں۔ لوکل دہی 210 روپے، جبکہ مختلف برانڈز کے دہی 350 سے 400 روپے تک دستیاب ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے دودھ کی فی کلو قیمت 160 روپے اور دہی کی قیمت 180 روپے فی کلو مقرر ہے۔ دکان مالکان اور شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت مہنگائی پر کنٹرول کرے گی تو چیزیں سستی ہوں گی۔ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦੇ ਦਾਣੇ ਪੱਠੇ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵੰਡ ਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਸਾਡੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਲੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਥੇ ਕੀ ਕਰੀ, ਮਜਬੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। हमारी तो हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि वो इन चीज़ों को सस्ती करे, इस तरह पेट्रोल सस्ता करे और घी है, चीनी है جو 180 پہ پہنچ گئی ہے، گھی 540 پہ پہنچ گیا ہے، اس کو مزید کام کرے۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ حکومت نے مہنگائی اس قدر کر دی ہے کہ جینا دو بھر ہو گیا ہے۔ حکومت سے گزارش ہے غریبوں کا احساس اور مہنگائی کو کنٹرول کرے۔ اور اب بات کریں گے ڈالر کے حوالے سے۔ ڈالر کو روزانہ جھٹکے لگنے کا سلسلہ جاری ہے۔ روپیہ جان پکڑنے لگا ہے۔ ڈالر کا سرکاری ریٹ 290 روپے سے بھی کم ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق کاروباری ہفتے کے دوسرے روز بھی ڈالر مزید سستا ہو گیا۔ ڈالر کی قدر میں مزید 1 روپے 6 پیسے کی کمی ہوئی اور انٹر بینک میں ڈالر کا ریٹ 289 روپے 80 پیسے پر بند ہوا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا ریٹ 293 روپے تک رہا۔ مارکیٹ ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈالر کی قدر میں مزید کمی کا امکان بھی موجود ہے۔ اور اب بات کریں گے موسم کے حوالے سے۔ شہر میں صبح سویرے سورج کرنیں بکھیرنے لگا۔ کم سے کم درجہ حرارت 22 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ فضائی آلودگی کی فہرست میں لاہور تیسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس
156 रिकॉर्ड किया गया है। मौसम का अहवाल आपको बता रहे हैं। शहर में सुबह सवेरे सूरज किरणें बिखेरने लगा है। कम से कम दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि लाहौर शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। फ़िज़ाई आलूदगी की अगर बात की जाए तो फ़िज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में लाहौर तीसरे नंबर पर आ गया है, जबकि शहर लाहौर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 156 रिकॉर्ड किया गया है। आज लाहौर शहर का कम से कम दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं सामिया सईद से। सामिया, मौसम का अहवाल बताइए। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए शहर लाहौर में मौसम की तो सुबह सवेरे से सूरज के जो तीखे वार हैं वो जारी हैं। गुज़िश्ता रोज भी शहर लाहौर का मौसम गर्म ही रिकॉर्ड किया गया। आज भी सूरत हाल जो है वो कुछ ऐसी ही महसूस की जाएगी कि आज शहर लाहौर का मौसम सारा दिन गर्म और मरकूब ही रिकॉर्ड किया जाएगा। ताहम रात के टाइम जो मौसम है वो खुशगवार हो जाएगा और ठंडी ठंडी हवाएं चलने का जो सिलसिला है वो भी जारी रहेगा। शहर लाहौर का मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और मौसम का हाल आने वालों का यही कहना है कि शहर लाहौर का कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज्यादा से ज्यादा जो दर्जा हरारत है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान दिखाई दे रहा है। हवा में नमी का तनासुब 69% रिकॉर्ड किया जा रहा है और महकमे मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक हवा की जो रफ्तार है वो 0 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। दूसरी जानिब अगर बात कर ली जाए फिजाई आलूदगी के हवाले से तो शहर लाहौर में फिजाई आलूदगी ने एक बार फिर से सर उठाना शुरू कर दिए हैं और आज शहर लाहौर फिजाई आलूदगी की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 156 रिकॉर्ड किया गया है। तो आज सारा दिन शहर का मौसम जो है वो गर्म ही रिकॉर्ड किया जाएगा और बारिश के जो भी कोई इम्कान जाहिर नहीं किए जा रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सामिया सईद, आपने आगाह किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुज़र इंजेक्शन से बिनाई मुतासर होने का मामला। पंजाब हुकूमत ने 15 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम कमेटी के सरबराह मुकर्रर। कमेटी 7 रोज़ में निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी को सिफारिशात पेश करेगी। लियाकत अली की रिपोर्ट में तफसीलात। बिनाई मुतासर करने वाले नाकिस इंजेक्शन बारे तहकीकात का फैसला। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने 15 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डॉक्टर जावेद अकरम कमेटी के सरबराह, जबकि वज़ीर प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासर मावन कन्वीनर होंगे। कमेटी इंजेक्शन से बनाई जाने के मामले का तमाम पहलुओं से जायजा लेकर वजूहात का तयन करेगी। कमेटी इंजेक्शन की मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूटर्स, सप्लायर्स और क्लिनिक्स की खामियों को भी उजागर करेगी। फील्ड रेगुलेटर्स के काम में खामियों की निशानदही और जिम्मेदारों का भी तयन करेगी। रॉश की फैक्ट्री से ये चली दवाई स्विट्ज़रलैंड से पोर्ट पे आई, जहाज़ में आई, जहाज़ में क्या कंडीशन में स्टोर हुई और उसके बाद जब ये ऑफलोड हुई तो पोर्ट में कितनी देर रही और वहाँ किस कंडीशन में रही और पोर्ट से फिर ये ट्रांसफ़र होके इनके डिस्ट्रीब्यूशन के पास आई और डिस्ट्रीब्यूशन जो अली गौहर है वहाँ से फिर आगे ये इन सेंटर्स में गई और किस मकदार में गई और किन किन सेंटर्स में ये काम हो रहा था कि इसको रीपैक किया जा रहा था छोटी छोटी सिरिंजों में और वो किस तरीके से किया जा रहा था। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब सेक्रेटरी कानून वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी कमेटी के रुकन होंगे। प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम डीजी ड्रग कंट्रोल पंजाब और माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी कमेटी में शामिल। कमेटी 7 रोज में अपना काम मुकम्मल करके वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को अपनी सिफारिशात पेश करेगी। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से बचने के लिए कमेटी से प्लान भी तलब किया गया है। दूसरी जानिब नाकिस इंजेक्शन से मुख्तलिफ अफराद की बिनाई जाने का मामला। लाहौर पुलिस ने इंजेक्शन की तैयारी में मुलव्विस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। बिलाल रशीद को आरिफ वाला से हिरासत में ले लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक मुलजिम बिलाल रशीद मॉडल टाउन के निजी हस्पताल में नाकिस इंजेक्शन तैयार करता था। इंजेक्शन की एक वाइल से 83 खुराकें निकाल कर लाखों रुपए मुनाफा कमाया जाता था। मुलजिम नाकिस इंजेक्शन पंजाब भर के हस्पतालों में सप्लाई कर रहा था। मालूम हुआ है कि आई सर्जन डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी ने बिलाल रशीद से 10 इंजेक्शन खरीदे और 8 मरीजों को लगाए। लाहौर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन विंग ने आरिफ वाला पुलिस की मुआवनत से मुलजिम बिलाल रशीद की गिरफ्तारी यकीनी बनाई। डेंगू मच्छर के वार जारी हैं। लाहौर में डेंगू के 47 नए मरीज सामने आ गए। सूबे भर में 109 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है। ज़िला इंतजामिया डेंगू लार्वा की अफजाइश रोकने के लिए फील्ड में मुतहरिक है। ये रिपोर्ट देखिए।
डेंगू मच्छर बदस्तूर बेकाबू। लाहौर में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 47 मरीज रिपोर्ट हुए। सूबे भर में डेंगू के 109 नए मरीज सामने आ गए। रवां साल लाहौर में डेंगू के 1527 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हो चुके। पंजाब में डेंगू के कन्फर्म मरीजों की तादाद 3786 हो चुकी है। सेक्रेटरी सेहत पंजाब अली जान का कहना है कि पंजाब भर के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के 128 मरीज जेर इलाज हैं। जिला लाहौर में डेंगू के 45 मरीज दाखिल हैं। दूसरी जानिब लाहौर की जिला इंतजामिया डेंगू लार्वा की अफजाइश रोकने के लिए मुतहरिक है। असिस्टेंट कमिश्नर्स के फील्ड में दौरे जारी। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी, कैंटनमेंट और शालीमार ने अपने इलाकों में डेंगू सर्विलेंस का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर ने कहा कि रवां साल 1,02,861 मकामात से डेंगू लार्वा तल्फ किया गया है। इंतजामी अफसरान डेंगू सर्विलेंस और डोर मार्किंग का सख्ती से जायजा लें। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, बिजली सार्फिन दोहरे असाब में मुब्तला। एक जानिब बिजली की कीमत में मुसलसल इजाफा तो दूसरी जानिब ओवर बिलिंग ने सार्फिन को असियत में डाल दिया है। लेस्को के अमले का लाइन लॉसेस और चोरी शुदा यूनिट्स छुपाने के लिए सार्फिन पर बोझ डालना मामूल बन गया है। ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ डिवीजन्स में करोड़ों यूनिट्स की ओवर बिलिंग की गई। ओवर बिलिंग के बायस लेस्को के अफसरान डिवीजन में तैनात होने को भी तैयार नहीं हैं। इंतजामिया की जानिब से शाहपुर डिवीजन में तैनात करने पर एक्सियन अवैस ताहिर ने मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया है। ज़राए का कहना है कि सेंट्रल सर्कल की शाहपुर डिवीजन में 4 करोड़ यूनिट से जायद की ओवर बिलिंग है। टाउनशिप डिवीजन में 1 करोड़ 20 लाख से जायद की ओवर बिलिंग की गई। रायविन डिवीजन में 3 करोड़ से जायद यूनिट्स की ओवर बिलिंग की गई है। और अभी आपको बताएं, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का जामिया अशरफिया का दौरा। चांसलर मौलाना फजलुर रहीम को चेयरमैन पंजाब कुरान बोर्ड बनने पर मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया है। सूबाई वज़रा डॉक्टर जावेद अकरम, आमिर मीर, असफर अली नासिर, बिलाल अफजल और मुशीर खेल वहाब रियाज भी वज़ीर आला के हमरात है। मोहसिन नकवी ने कहा कि पंजाब हुकूमत कुरान बोर्ड को मुकम्मल सपोर्ट करेगी। उम्मीद है कि आप जैसे आलिम दीन की रहनुमाई में पंजाब कुरान बोर्ड एक फ़ाल इदारा बनेगा। नाज़िम जामिया अशरफिया मौलाना हाफिज असद उबैद समेत दीगर ने भी शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं लियाकत अली से। जी लियाकत, बताइए। जी, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी जो है वो जामिया अशरफिया पहुंचे और वहां पर चांसलर मौलाना फजल रहीम को चेयरमैन पंजाब कुरान बोर्ड के ओहदे पर तैनाती पर मुबारकबाद दी और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सूबाई वज़रा जिनमें डॉक्टर जावेद अकरम, आमिर मीर, असफर अली नासिर, बिलाल अफजल और मुशीर खेल वहाब रियाज भी निगरान वज़ीर आला के हमरात से। मोहसिन नकवी का कहना था कि चेयरमैन पंजाब कुरान बोर्ड के ओहदे पर आपकी तैनाती का दिल की अथाह गहराइयों से खैर मकदम करते हैं और हुकूमत पंजाब कुरान बोर्ड को पूरा सपोर्ट करेगी। उम्मीद है कि आप जैसे जय्यद उलमा इकराम की रहनुमाई में पंजाब कुरान बोर्ड एक फ़ाल अदारा बनेगा। चांसलर मौलाना फजल रहीम ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया और इस मौका पर जो है मुल्क कौम की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम और अमन सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी कराई गई थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत अली, आपने तफसील नगाह किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला तय पा गया है। कौमी क्रिकेटर्स के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर दिया गया है। मामला फ़रीक़ैन के दरमियान बाहमी इत्तफ़ाक़ से तय पाया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला चंद माह से इल्तिवा का शिकार था। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला तय पा गया है। कौमी क्रिकेटर्स ने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर दिया है, जबकि मामला फ़रीक़ैन के दरमियान बाहमी इत्तफ़ाक़ से तय पाया है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला चंद माह से इल्तिवा का शिकार था। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सस्ती प्रोटीन का हसूल शहरियों के लिए नामुमकिन बनने लगा है। ब्रायलर और अंडे आम आदमी की कुव्वत ख़रीद से बाहर हो गए। मुर्गी के गोश्त की कीमत 527 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार है, जबकि जिंदा ब्रायलर होलसेल 338, परचून रेट 351 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडे 1 रुपया फ़ी दर्जन महंगे, कीमत 293 रुपये हो गई। अंडों की पेटी 8670 रुपये में दस्तयाब है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर से राब्ता बहाल करेंगे। अभी आपको एक मरतबा फिर बताएं, सस्ती प्रोटीन का हसूल शहरियों के लिए नामुमकिन बनने लगा है। ब्रायलर और अंडे आम आदमी की कुव्वत ख़रीद से बाहर हो गए हैं। तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, बताइएगा आज के रेट के हवाले से। आज बिल्कुल ब्रायलर की कीमतें जो हैं वो 527 रुपये फ़ी किलो की सतह पर आज बरकरार रखी गई और इसकी बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि ब्रायलर की जो सेल है वो बुरी तरह मुतासर हुई है, क्योंकि लोगों की जानिब से महंगे ब्रायलर की खरीदारी काफ़ी हद तक जो है वो कम की गई है, जिसके बायस जो ब्रायलर की कीमतें जो है मुतासर हो रही है।
होल सेल जिंदा ब्रायलर 338 रुपये, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 351 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है। ताहम अंडों की कीमतों में जो है मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है और आज चौथे रोज भी अंडे जो है महंगे किए गए। रोजाना की बुनियाद पर 1 रुपये फी दर्जन का इजाफा किया जा रहा है। आज 292 रुपये की कीमत बढ़ाकर 293 रुपये फी दर्जन मुकर्रर की गई है। होल सेल मार्केट में अंडों की पेटी 8,670 रुपये की सतह पर पहुंच चुकी है, जबकि परचून बाजारों में सी अंडा जो है 25 रुपये तक, जबकि फी दर्जन अंडे जो है 300 रुपये तक बेच दिए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद शहरी मसाजिद, गलियों और बाज़ारों को सजाने के लिए आराइशी अशिया की ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। गंबत रोड पर स्टॉल्स पर रश बढ़ने लगा है। शहरी कहते हैं यौम विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर अंदाज में मनाएंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहरी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए पुरजोश गणपत रोड पर रश बढ़ने लगा। सब्ज झंडियों, बैजेस, बरकी कुमकुमों और कागजी फूलों की खरीदारी जारी। शहरी मसाजिद, गलियों और बाजारों को सजाने के लिए आराइशी अशिया खरीदने में मसरूफ हैं। शहरियों का कहना है कि नबी आखिरुल ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत को ईद की तरह मनाएंगे। मसाजिद, घरों और गलियों को खूबसूरत लाइटों और झंडों से सजाएंगे। हम अपने घर, मोहल्ले, गलियां, बाजार सजाते हैं। अभी भी ये सामान लेके आ रहे हैं मार्केट से। बहुत माशाल्लाह रश है। सरकार की आमद की खुशियां हैं। हर साल इस तरह ही खुशी का महीना है, खुशी मनाई दी है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना है तो असी जोशो खरोश के नाम मनाते हैं। आइंदा मनाते रहेंगे सारी जिंदगी, क़यामत तक। दुकानदारों का कहना है कि आराइशी अशिया पर मुनासिब मुनाफा ले रहे हैं ताकि हर कोई इस खुशी में शरीक हो सके। मार्केट में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से मस्जिद नबवी और खाना काबा के मॉडल्स भी फरोख्त के लिए रखे गए हैं। दूसरी जानिब लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ बायोलॉजिकल एंड अप्लाइड साइंसेस के ज़ेर एहतमाम मजहबी अदम बर्दाश्त का सदेबाब सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में के उन्वान से सेमिनार मुनक्किद किया गया। मुकर्ररीन ने सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने पर भरपूर जोर दिया। ज़ैन अली की रिपोर्ट। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ बायोलॉजिकल एंड अप्लाइड साइंसेज के वाइस चांसलर की हिदायत पर प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नईम हसन मुबारक और असद अहमद खान ने सेमिनार का इनअकाद करवाया। मजहबी अदम बर्दाश्त का सदेबाब सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में सेमिनार का उन्वान था। यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद खालिद खान, साबिक वज़ीर ममलकत क़य्यूम निज़ामी, नायब रेक्टर तालीमी उमूर FCC यूनिवर्सिटी डॉक्टर डगलस ट्रिम्बल और वाइस चांसलर GC यूनिवर्सिटी डॉक्टर असगर ज़ैदी खुसूसी तौर पर शरीक हुए। SSP डॉक्टर मोहम्मद रिजवान खान, नायब सदर नेशनल काउंसिल चर्च ऑफ पाकिस्तान रोबन कमर ने भी शिरकत की। प्रिंसिपल जामे यूसुफिया हाफिज खलील अहमद यूसुफी, प्रोफेसर गैरिजन यूनिवर्सिटी हाफिज डॉक्टर मुदस्सिर शफीक, मारूफ नाथ खान, कार महमूद हाशमी और सदर यूथ पार्लियामेंट मोहम्मद अबू बकर भी सेमिनार का हिस्सा बने। प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर नईम मुबारक ने अपने खिताब में कहा कि बाहमी अफ़हाम व तफ़हीम और पुरअमन ताल्लुकात को फ़रोग़ देना वक्त की अहम ज़रूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा रवादारी का दर्स दिया। यूनिवर्सिटीज़ और तमाम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पर एक भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने तलबा को एक रवादारी और बर्दाश्त का सबक राइट फ्रॉम देयर स्टार्ट ऑफ एजुकेशन सिखाना शुरू कर दें। एंड दिस प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी वी टेक ऑन हेड और हमने इस पर एक सेमिनार मुनक़िद करवाया। हमारा एम ये है कि इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने वाले तलबा एक ग्लोबल सिटीज़न हों जो ग्लोबल पीस में अपना एक अहम किरदार अदा करें और उनके नज़रों में तमाम मज़ाहिब के लिए इक्वल रिस्पेक्ट। डायरेक्टर तालीमी उमूर FCC यूनिवर्सिटी डॉक्टर डगलस ट्रिम्बल ने कहा कि हम सबको आजिज़ी से खिदमत के रास्ते पर चलने वाली ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। Break the cycle of hatred with forgiveness and to recognize the shared humanity in those we may perceive as adversaries. By doing so, we have the potential to foster understanding, to heal wounds, and to ultimately build bridges of peace. सेमिनार के इख्तिताम पर प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद खालिद खान ने मेहमानाने गरामी और तकरीब के ऑर्गेनाइजर्स में शील्ड्स तकसीम की। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ ज़ैन अली, लाहौर न्यूज़। LDA की टीमों ने इलामा इकबाल टाउन में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान 22 से ज़ायद अमलाक को सील कर दिया गया है। LDA की टीमों ने कमर्शलाइजेशन फ़ीस ना दहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई की। सील की गई अमलाक में निजी बैंक का ग्रॉसरी स्टोर, शॉपिंग सेंटर, फूड पॉइंट्स और दुकानें शामिल हैं। सील करदा अमलाक के मालिकान को मुतअद्दिद बार नोटिस जारी किए गए थे। नोटिस पर अमल दरामद न करने पर एक्शन लिया गया।
निगरान पंजाब काबीना का बड़ा फैसला। पंजाब हुकूमत ने इलेक्शन रूल्स में तरमीम कर दी हैं। मुशीर कानून पंजाब ने तस्दीक करते हुए कहा कि निगरान हुकूमत ऑर्डिनेंस के जरिए EVM को ख़त्म कर सकती है। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद हसन रजा की इस रिपोर्ट में। निगरान पंजाब काबीना का इजलास। पंजाब हुकूमत ने इलेक्शन रूल्स में तरमीम कर दी। पंजाब हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के जरिए EVM को खत्म कर दिया। EVM को खत्म करने का ऑर्डिनेंस इलेक्शन कमीशन की सिफारिशात की रोशनी में किया गया। ऑर्डिनेंस 3 माह तक नाफिजुल अमल रहेगा। बाद में 3 माह की तौसीक काबीना करेगी। EVM को इस्तेमाल करने या ना करने का इस्तेहकाक सियासी हुकूमत का है। मशीर कानून पंजाब कंवर दिलशाद कहते हैं, पंजाब काबीना ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को खत्म करने की मंजूरी दे दी। कंवर दिलशाद के मुताबिक काबीना को ब्रीफिंग दी गई कि EVM फिलहाल काबिल अमल मंसूबा नहीं, वक्त का ज़िया है। EVM के इस्तेमाल से इलेक्शन नताइज मुतनाज़ा तस्वुर होंगे। पाकिस्तान के दीही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक है, वहाँ EVM नहीं चल सकती। EVM के इस्तेमाल के लिए पिछली सियासी हुकूमत ने बजट में रकम मुख्तस नहीं की। कंवर दिलशाद के मुताबिक निगरान हुकूमत ऑर्डिनेंस के जरिए EVM को खत्म कर सकती है। बुज़दार हुकूमत ने जानबूझकर EVM को एक्ट में डाला। इलेक्शन कमीशन इस पर वाज़ेह मौक़िफ़ रखता है कि EVM काबिल अमल मंसूबा नहीं। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करें। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज लंदन से लाहौर पहुंच गई। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर भरपूर इस्तकबाल के लिए लीगी खवातीन को हर अव्वल दस्ते का किरदार देने का फैसला कर लिया गया है। मरियम नवाज खवातीन विंग को मजीद फाल बनाएंगी। हसन रजा की रिपोर्ट में तफसीलात। मुस्लिम लीग नून की जानिब से साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां अरूज पर। मरियम नवाज भी लंदन से वापस लाहौर पहुंच गईं। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज के जरिए लंदन से बरास्ता अबू ज़ैबी लाहौर पहुंची। लाहौर एयरपोर्ट पर जुनैद सफदर समेत पार्टी रहनुमा और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। नवाज शरीफ के इस्तकबाल में खवातीन को हर अव्वल दस्ते का किरदार देने का फैसला। मरियम नवाज खवातीन विंग को मजीद फाल बनाएंगी और खसूसी इजलास मुनक्किद करेंगी। टास्क पूरे करने वाली खवातीन को आइंदा मखसूस नशिस्तों पर नामजद किया जाएगा। नून लीग के कायद की वापसी पर मीनार पाकिस्तान पर जलसे की मनसूबा बंदी भी कर ली गई। जलसे के लिए 1,05,000 कुर्सियां लगाई जाएंगी। दूसरी जानिब पंजाब पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और दीगर इदारों के हुकाम ने लाहौर एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान तक रूट्स का दौरा किया। पुलिस हुकाम के मुताबिक नवाज शरीफ की वापसी पर सिक्योरिटी और अमन अमान बरकरार रखने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। और अभी आपको बताएं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ़ कहते हैं डील नवाज शरीफ की डिक्शनरी में नहीं है। सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं। 21 अक्टूबर को सब तजदीद अहद के लिए मीनार पाकिस्तान आएंगे। सामिया सईद की रिपोर्ट। मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि डील नवाज शरीफ के डिक्शनरी में नहीं है। नून लीग तमाम सियासी फोर्सेस के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मांगती है, मगर 9 मई के जिम्मेदारों के लिए नहीं। अगर इंसाफ करने वालों के पीछे कौम नहीं खड़ी होगी तो किससे इंसाफ का मुतालबा करेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए होनी चाहिए। भले हमारे लिए कोई आवाज उठाता था या नहीं, हम सबके लिए आवाज उठाते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को होनी चाहिए। मगर 9-10 मई के दहशत गर्दों को भी अगर आप पॉलिटिकल फोर्स कहते हैं तो फिर दहशत गर्दों की कोई तारीफ, कोई उनकी तशरीह कोई और कोई करता है तो वो मुझे बता दे, ताकि हमें पता चल सके कि पाकिस्तान कोई ईंट से ईंट बजाने वाले को भी अगर सियासी लीडर कहते हैं और पाकिस्तान के अंदर मसल्ला जत्थे तैयार करने वालों को भी पॉलिटिकल फोर्स कहते हैं, तो फिर दहशतगर्द तंजीमें किसको कहते हैं। जावेद लतीफ का मजीद कहना था कि नवाज शरीफ वाहिद लीडर हैं जो मुल्क को गिरदाब से निकाल सकता है। कैमरामैन जीशान के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। इंतहा पसंदी के अमन पर असरात, इस मौजू पर गवर्नमेंट कॉलेज बराए खवातीन वहदत कॉलोनी में सेमिनार मुनक्किद हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। गवर्नमेंट कॉलेज बराए खवातीन वहदत कॉलोनी में इंतहा पसंदी के अमन पर असरात के मौजू पर सेमिनार हुआ। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अज़मा बुखारी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। प्रिंसिपल कॉलेज फराम अली, फैकल्टी मेंबरान और तालिबात की कसीर तादाद सेमिनार में मौजूद थी। अपने खिताब में अज़मा बुखारी ने कहा कि अमन के लिए दलील से बात करना बहुत जरूरी है। खुद को अच्छा साबित करने के लिए दूसरों को बुरा कहना फैशन बन गया है। अपनी बात मनवाने का कल्चर इंतहा पसंदी को जन्म देता है। पहले अपने आप को दुरुस्त करना चाहिए, पहले अपने आप को इस काबिल बनाएं कि हम किसी दूसरे पे उंगली उठा सकें, किसी दूसरे को लेक्चर दे सकें, किसी दूसरे को जो है वो कोई सर्टिफिकेट बांट सकें। और मुझे उम्मीद है पाकिस्तान की बच्चियां बहुत बाशऊर हैं। पाकिस्तान की बच्चियां
زندگی کے ہر شعبے میں اتنی ترقی، اتنی کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں کہ لڑکے جو ہیں وہ بس دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ سیمینار میں ڈی پی آئی کالجز فائزہ ظفر نے خطاب میں کہا کہ انتہا پسندی کا مقابلہ تعلیم سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ کیمرہ مین محمد بلال کے ساتھ زاہد عابد، لاہور نیوز۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کہتے ہیں قوم کو جان بوجھ کر مایوسی کا شکار کیا گیا۔ مہنگائی صرف پاکستان کا نہیں، ترقی یافتہ ممالک کا بھی مسئلہ ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی میں پاکستان انجینئرنگ کونسل کے زیر اہتمام سٹیم مقابلوں کے پوزیشن ہولڈرز کی تقریب مہمان خصوصی گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے اپنے خطاب میں کہا کہ نوجوانوں کو جدید علوم سے روشناس کروانا وقت کی ضرورت ہے۔ طلباء کو چاہیے کہ وہ کسی کے مذموم مقاصد کا حصہ نہ بنے بلکہ دیکھیں کس دور میں ترقی ہوئی۔ آج مہنگائی کی وجہ سے امریکہ، یورپ میں بھی رہزنی اور قتل ہو رہے ہیں۔ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے محنت کرنا ہوگی۔ ہمیں بچوں کے اندر، ہمارے اسٹوڈنٹس کے اندر کرٹیکل اینڈ انالیٹیکل تھنکنگ کیپیبلٹیز پروموٹ، کسی بھی مارکیٹنگ کمپنی کا ان کو ٹول نہیں بننا، کسی بھی الٹیریئر موٹیو کا ان کو ٹول نہیں بننا، کسی بھی مضمون ارادے کا ان کو اعلی کار نہیں بننا۔ آج غلطی سے